Okay, students, I welcome you all to your Vedantu Accountancy class. So this is Riddhi Sikri, your accountancy master teacher, and this is a very important session for all the students, those who are entering into 11th from 10th, है ना, और उन्होंने साथ के साथ कॉमर्स लिया है या फिर कॉमर्स लेना चाहते हो, राइट। तो इस वीडियो में, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले बेटा कि पूरा कॉमर्स किस बेस पर है, कॉमर्स में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, कॉमर्स की किस तरह से पढ़ाई होती है ना। जो भी बच्चे स्टार्ट करना चाहते हैं कॉमर्स सब्जेक्ट को, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को, कॉमर्स को समझना चाहते हैं, तो यस, दिस इज द वीडियो फॉर यू ऑल, राइट। तो टोटली ये सारी बातें आज के सेशन में समझेंगे कि कॉमर्स हमें लेनी चाहिए, क्यों लेनी चाहिए, और क्या क्या चीजें कॉमर्स के अंदर बेटा कवर होती है, राइट। सो जब भी हमें किसी सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना होता है या कोई सब्जेक्ट हमें अच्छा लगता तभी है बेटा जब हम उसमें अपना इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं। तो अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट से दिल से प्यार करना है, दिल लगाना है किसी सब्जेक्ट से, तो बिल्कुल आप लोगों को उस सब्जेक्ट में अपना इंटरेस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और बिल्ड कैसे होगा, जब आप उसकी सच्चाई को जानोगे, है ना। एक टाइम पे हिस्ट्री सबको बोरिंग लगती है, मैम हमें तो नहीं लगती, आपको लगती होगी, ओके। बट जब आप थोड़ा सा उसको मूवीज से देखते हो, है ना, तो हर इंसान का उसमें इंटरेस्ट बन जाता है कि हाँ यार, ये तो हमने पढ़ा था, है ना। जब भी आप हिस्टोरिकल मूवीज देखते हो तो आप सोचते जरूर हो कि यार हाँ, ये तो हमने पढ़ा था। तब इतना इंटरेस्ट नहीं लेते थे, बट अगर मूवीज में दिखाते तो कितना अच्छा लगता, मूवीज करके स्कूल में अगर समझाया जाता, राइट। सो फिर आपको खुद जानने का मन करता है कि अच्छा इसमें हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर कैसे हुआ था, राइट। तो इसी तरीके से बेटा अगर किसी सब्जेक्ट को हमें दिल से लगाना है तो उसको अच्छे से जानना पड़ता है। वी हैव टू नो द सब्जेक्ट वेरी क्लियरली एंड वी हैव टू लव द सब्जेक्ट फ्रॉम आवर हार्ट्स, then only subject is going to love us back, right? So let's understand कि commerce में क्या क्या चीजें cover होती है, right? So let's start the session which is all about commerce, है ना। all about commerce we are going to discuss in this class. So basically first let's understand commerce. You have a chapter in BST as well in which you will initially understand what is trade, what is commerce. But let me tell you कि commerce is actually about what? Commerce is the study of trade and business activities. So basically, beta, you will understand how to trade and you will understand the business activities, that what happens in business activities, how we prepare accounts for different types of business activities, है ना, such as exchange of goods and services. If we are exchanging goods, if we are buying goods, if we are selling goods, how is the market production going on, how are we producing, what on what basis factories are producing goods, and what is the demand of people, which product people are liking more, what happens when price is less, what happens when price is more. These are the all things which you will all come to know in this subject or in this stream commerce, है ना, from the producer to final consumer, right? So it will also tell you that from the initial input how it ends as a final output and how it is sold to customer, what is the procedure in between, and on what basis this work is done, right? It covers various fields. You are going to understand like various fields: economics, BST, business administration, finance, marketing. So whole of commerce is very wide. We are going to discuss about your 11th 12th basically in this class, but whole of commerce covers all these things. You understand about economics, you understand about business and administration, you understand about finance, you understand about marketing, you understand about management, you understand about managerial management, you understand about stats, you understand about economics, right? You understand about strategic management, you understand different types of accounting, financial accounting, which you all have in your 11th 12th. Then in your colleges you are going to do tax accounting, right? Strategic accounting, corporate accounting. These are all things you all will do in your commerce stream. तो कॉमर्स स्ट्रीम बेटा बहुत वाइड है, कॉमर्स स्ट्रीम में बहुत सारी चीजें हैं। जो फर्स्ट स्टेप आता है कॉमर्स स्ट्रीम का, दैट वी बिगिन इन 11th, राइट। तो 11th में जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास मेजर 3 सब्जेक्ट्स आर देयर, राइट। वन इज अकाउंटेंसी, another is business studies, and another third one is economics, right? These are the main subjects of commerce. First one is accounting beta. Accounting, these subjects deal with recording, classifying, summarizing financial transaction. So basically beta, you all must have seen so many business around you, है ना, so many types of businesses around you. So sometimes it is a sole proprietor, that means a sole owner is running a business. Sometimes 2 people minimum together they are running a business, that means partnership. And there are companies, there are HUF, that means Hindu undivided families. There are different types of business running in the market.
So accounting tells us how they prepare their books of accounts. What are the rules, है ना, जिनसे हम अकाउंट्स बनाते हैं. ये सारी चीजें बेटा हम अकाउंटिंग सब्जेक्ट में समझते हैं, राइट, कि कैसे ट्रांजेक्शन्स को एक एक को मेंटेन किया जाता है, कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एक बिजनेस का, हाउ वी कैलकुलेट द टैक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ बिजनेस, राइट. तो ये सारी चीजें बेटा हम अकाउंटिंग में समझते हैं कि एक बिजनेस के प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाउ टू नो व्हाट अर्निंग वी आर डूइंग, how to know what gross profit we have earned, how to know what net profit we have earned, that we understand through this subject which is accounting. तो बेटा जी एक बात I am going to tell you very clearly that कॉमर्स के इंटरेस्टिंग होने का सबसे मेन रीजन पता है क्या है, क्योंकि 100% रियल लाइफ से एक एक मिनट आप रोज रिलेट करोगे, है ना, जितना जितना आप पढ़ते जाओगे ना, एवरी डे यू आर गोइंग टू रिलेट एवरीथिंग विद योर कॉमर्स सब्जेक्ट्स. एंड द सबसे अच्छी चीज क्या है कि तीनों सब्जेक्ट्स आपस में भी इंटर रिलेटेड है, और बढ़िया हो गया, राइट. तो यू आर गोइंग टू एंजॉय ऑल थ्री सब्जेक्ट्स क्योंकि आपस में इनका इंटर रिलेशन होगा ही होगा. बिजनेस में जिस चीज का आप थ्योरी पढ़ोगे, अकाउंटिंग में आप उसके अकाउंट्स बनाओगे. कि बिजनेस में आज हम पढ़ के आए हैं मैम कि सोल प्रोप्राइटर कैसे बिजनेस करता है, फिर अकाउंट्स में हम उसको पढ़ेंगे कि सोल प्रोप्राइटर कैसे अकाउंट्स बनाता है, राइट, हाउ ही कैलकुलेट्स प्रॉफिट, राइट. तो ये सारी चीजें बेटा अकाउंटिंग में आती हैं. उसके बाद आपका आ जाता है बेटा सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स. इकोनॉमिक्स विल टीच यू हाउ इकोनॉमी रन्स. तो बेटा एक ना एक दिन आपको इकोनॉमी के बारे में देखो समझना तो पड़ेगा ही, तो व्हाई नॉट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट. तो अभी से 11 से ही पढ़ना शुरू करो, एक ना एक दिन आपको खुद इकोनॉमी में इंटरेस्ट आएगा, याद रखना, और फिर आप खुद इकोनॉमिक्स में इधर उधर सर्च करके पढ़ोगे, तो फिर 11 से ही स्टार्ट कर दो, राइट. द लॉज ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, एज आई वाज टेलिंग यू कि मार्केट का सप्लाई डिमांड किस तरह से वर्क करता है ना. जब आप ये चीजें पढ़ोगे ना, यू आर गोइंग टू सी एवरीथिंग डिफरेंटली. आपका नजरिया ही बदल जाएगा बेटा चीजों को देखने का. आप किसी चीज का प्राइस देखोगे ना, उसको देख के बता दोगे कि इसका, हाँ, इसका तभी डिमांड ज्यादा हो रहा है, ये रीजन है, इसका तभी डिमांड कम हो रहा है, दिस इज द रीजन, आई हैव स्टडीड द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, राइट. सो दीज आर द थिंग्स व्हिच यू विल अंडरस्टैंड इन इकोनॉमिक्स. साथ के साथ आप पढ़ोगे कि इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या है, थोड़ी बहुत हिस्टोरिकल थ्योरीज भी आती हैं. और इकोनॉमिक्स आपका अगर देखा जाए 11th-12th का, तो टोटल 4 पार्ट्स में वो डिवाइड होता है, 11th-12th का मिलाकर, राइट. 11th में I think you all have micros, you all have statistics. In 12th you have macro and Indian economic development. तो stats भी आपको पढ़ने को मिलेगा economics में, right? साथ के साथ माइक्रो इकोनॉमिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी कि इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमिक्स किस तरीके से काम करता है, राइट. सो दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट. थर्ड सब्जेक्ट इज योर बिजनेस स्टडीज. द सब्जेक्ट इज एक्सप्लेनिंग इटसेल्फ बाय द नेम. The subject introduces you to the basis of business management, organizational structure, business operations. एक बिजनेस किस तरीके से टोटली वर्क करता है, what are the forms of doing business, what is the procedure of starting a business, which business you should opt on the basis of different situations, that you will understand in business studies. So these are the main subjects of commerce. Apart from that, it depends on you which optional subject you are taking, है ना. You can of course English you are going to get compulsorily, or a language of course you are going to compulsorily you are going to get it. Apart from that, you can take any optional subject, that can be maths, right, that can be your maths, that can be your physical education, that can be your IT, that can be your entrepreneurship, depends on the school, है ना, and depends on your likings, right. So these were the three main commerce subjects. Apart from that, you can choose maths, IP, or physical education, entrepreneurship. Totally depends on your choice. Again, I like to clear here the myth that everybody is going to, majority is going to say you that go for maths, but decide on your own. If you are good at maths, if you are super amazing at maths, then go for maths, है ना. If you love maths, कि हाँ maths मुझे बहुत अच्छा लगता है करना, so then of course maths is for you, right. Otherwise there is no disadvantage rather than कि एक बीकॉम ऑनर्स वो भी एक आधे यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेगा, उसके अलावा there is no मेन डिसएडवांटेज, है ना. बीकॉम हर जगह पे आपको अवेलेबल रहेगा, वो भी एक आधा कोई कॉलेज होगा सारे यूनिवर्सिटीज में से, है ना. सारे यूनिवर्सिटीज में से कोई एक आधी यूनिवर्सिटी होगी जो बोलेगी कि नहीं हम मैथ्स के बिना वालों को बीकॉम ऑनर्स नहीं देते, बट अदरवाइज आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू, है ना, कि it's totally up to you, है ना, whichever optional subject you should opt or which you have opted, right.
तो ये सारे बेटा हमारे पास मेन सब्जेक्ट आते हैं। अब मैम मैं ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ूँ, मेरा क्या स्किल डेवलप होगा? ऑफ कोर्स योर एनालिटिकल थिंकिंग इज गोइंग टू बी डेवलप्ड इफ यू स्टडी कॉमर्स। आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने आप ही आ जाएगा बेटा, है ना, क्योंकि बिजनेस स्टडी में इतने केस स्टडी आपको देंगे। केस स्टडी मीन्स दे आर गोइंग टू टेल यू द स्टोरी, देन दे आर गोइंग टू आस्क कि दिस इज विच टॉपिक, तो वो आप पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करना खुद ही सीख जाओगे। एंड ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स यू आर गोइंग टू लर्न। आगे जाके इन योर कॉलेजेस यू आर गोइंग टू गेट सब्जेक्ट फॉर योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स, इंटरव्यूज, एक सब्जेक्ट्स ऐसे भी आएंगे, वो आप बिल्कुल पढ़ोगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू हैंडल नंबर्स एंड डाटा एफिशिएंटली, सो your numerical ability will also increase, right? So career opportunities का क्या है मैम scope? What is the scope in career opportunities? So yes, we have launched a video based on कि degree courses कौन कौन से हैं commerce में, that is also on the channel, you can check that out. But आपको main I am telling कि और कौन कौन से career opportunities हो सकते हैं, of course which you all must have heard, which is chartered accountant। बिल्कुल chartered accountant आप बन सकते हो। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या करता है? अकाउंटिंग करता है, टैक्सेशन करता है, ऑडिटिंग करता है, किसकी? कंपनीज की, इंस्टीट्यूशंस की, फर्म्स की, राइट? जिस भी तरीके का बिजनेस है चार्टर्ड अकाउंटेंट वहां पर अकाउंटिंग करता है। उसके अलावा यू कैन बिकम मार्केटिंग मैनेजर, फाइनेंशियल एनालिस्ट, बिजनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, right? These all things you can start with commerce. Apart from that there are more opportunities for which we have uploaded separate videos कि हाँ अपना पूरा प्रोफेशनल कोर्स का एक वीडियो है। What we'll do, we'll attach the link in the description if you want to know what are the best career opportunities for commerce. One video is for the top professional courses, another is for degree courses. तो दोनों का लिंक we will attach in the chat, right? तो उससे आप लोग जान सकोगे कि क्या चल रहा है यहाँ पर। ओके जी, सो ये आपके मेन करियर अपॉर्चुनिटीज होते हैं। अब हाउ टू स्टडी द कॉमर्स सब्जेक्ट्स, राइट? हाउ टू स्टडी द कॉमर्स सब्जेक्ट? of course you have to be organized, ma'am. How to be organized in commerce subjects? You have to prepare proper notes, but I am telling you कि अगर if you are not maintaining the proper notes ना, what will happen with you? just जैसे ही आपका एग्जाम आएगा तब आप सब भूल जाओगे, राइट? और जब भी कोई क्वेश्चन करने बैठोगे तब सब भूल जाओगे। तो इट्स बेटर कि हमारे पास नोट्स है, क्वेश्चन करने से पहले हमने नोट्स देख लिया और नोट्स देख के हमने क्वेश्चन एक बार को समझ लिया, फिर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट टाइम हमें नोट्स का नीड ना पड़े, बट स्टिल नोट्स सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है बेटा कॉमर्स सब्जेक्ट में, क्या हर सब्जेक्ट में, राइट? सो पूरे तरीके से अपने एक प्रॉपर नोट्स स्टार्टिंग से ही बनाना शुरू कीजिएगा। प्रैक्टिस रेगुलरली, ऑफ कोर्स यू हैव टू मेंटेन अ शेड्यूल फॉर योर प्रैक्टिसिंग। if you are practicing and working on your subjects on majorly on accounting and mathematics every day, business studies and economics alternate days, तो बात बन जाएगी बहुत अच्छे से, right? और बेटा you are going to remember your 12th marks your whole life, है ना? आप पूरी लाइफ अपने 12th के मार्क्स याद रखोगे। yes of course it is a piece of paper, but आप अंदर से उसको खुद याद रखोगे। दुनिया याद रखे ना रखे, आपको खुद को याद रहेगा कि यार आई वर्कड हार्ड, आई लाइक द सब्जेक्ट्स एंड दोज सब्जेक्ट्स मेड मी समथिंग टुडे। सो बहुत अच्छे से रोज प्रैक्टिस कीजिएगा और रोज प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिएगा इफ यू आर सीइंग दिस वीडियो लेट। सो स्टे अपडेटेड, ऑफ कोर्स स्टे अपडेटेड। बेसिकली बेटा यू कैन स्टे अपडेटेड व्हाट इज गोइंग ऑन इन द डिफरेंट कंपनीज। जैसे अलग अलग टाइप के आप शोज बिल्कुल देखिए, है ना? जैसे मूवीज देखिए कॉमर्स रिलेटेड, स्कैम 1992, गुरु, है ना? स्कैम 1992 इज अ वेब सीरीज, गुरु इज अ मूवी। उसके अलावा आप शार्क टैंक देखिए, तो उसमें यू विल कम टू नो कि ये सारी चीजें किस तरीके से रियल लाइफ में यूज हो रही हैं, राइट? तो यू विल बी एबल टू रिलेट योर अंडरस्टैंडिंग एवरीवेयर, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में। सो स्टे अपडेटेड विद द कंपनीज अपडेट्स कि कंपनीज में क्या चल रहा है, फर्म्स में क्या चल रहा है, कैसे ये हुआ, कैसे वो हुआ। So you'll be easily able to relate everything. And of course don't hesitate to seek help from the teachers of yours, because beta in 11 this is a total new subject for everybody, for your peers as well as for your friends, right? सबके लिए ये एक नया सब्जेक्ट ही है। तो टीचर्स को भी पता है कि बेटा ये आपके लिए नया सब्जेक्ट है, तो टीचर्स भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, वैसे भी अच्छे से ही समझाते हैं। तो साथ के साथ आप लोग पूछोगे भी तो उसमें हेजिटेट क्या ही होना जब आप बोलोगे कि अभी तो हम एबीसीडी पढ़ना शुरू किया है कॉमर्स का, राइट? अगर हमने एबीसीडी पढ़ना शुरू किया है, एबीसीडी है धीरे धीरे आपको सीधा ही 11th 12th में ही एबीसीडी से पूरा सब कुछ एक बार में ही पढ़ा दिया जाएगा। 11th 12th में एबीसीडी से सीधा ही पूरा पहाड़ चढ़ा दिया जाएगा। 11th 12th में ही इतना आप कॉमर्स को जान जाएंगे।
बट बेसिकली बेटा आप बिल्कुल बिना शर्माए सारी चीज़ें पूछो, क्योंकि आपके लिए नया सब्जेक्ट है, आप क्यूरियस हो, टीचर भी पढ़ाने में 100% हर कोई टीचर इंटरेस्टेड है, राइट? सो इसी तरीके से आप अपनी तैयारी कीजिएगा, है ना? इन दिस मैनर you all can prepare for your class 11th commerce subjects. And yes, I have a happy news and important news for you all, that in 3 days we are going to launch free batch for 11th. Free batch for 11th syllabus. तो पूरा का पूरा सिलेबस विल बी टॉट ऑन यूट्यूब टू ऑल ऑफ यू, ठीक है जी? सो स्टे कनेक्टेड विद द चैनल। 2-3 दिन में, इन 2-3 days, the batch will be launched, right? So yes, so thank you for watching. That is all for the day, है ना? This much information I wanted to give you all. If this video is beneficial for you, if you all are able to understand everything, if you had fun in the video, if you understood everything in the video, then do like the channel and subscribe. Do like the video and subscribe the channel, है ना? मैम आप तो कह रहे हो कि सब्सक्राइब करना है वीडियो को, लाइक करना है चैनल को। नहीं नहीं भाई, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है? Okay ji, okay, thank you so much, thank you so much. This much only we are covering for today. I will be seeing you all in the upcoming sessions of your whole 11th syllabus, right? So stay connected, do subscribe the channel and do like the video. I will be seeing you all in the upcoming videos. Take care of yourselves. Bye bye.